How do men love? Do they sing you songs and write poems in your name? Do they watch your favorite shows while sacrificing their game? Does their softest hoodie become yours by default? Do they apologize even when you are at fault? How does a man love? Is it the way we see in the movies and the books? Does his love go beyond your height, body, and looks? Is he romantic? Does he plan a candlelight dinner? Does his love feel like a prize and you are the winner? True. Is a man's love just a concept, a puzzle with no clue? Are all the men really sexist, only looking for obedient wives? Are all the words of love just manipulations, deceit, and lies? Have men come together and tried to make us believe that earning their love is the only goal we must achieve? Are we brainwashed into rejoicing the very bare minimum? Is their love a challenge that we must overcome? What exactly is a man's love? I have pondered over this question for several years in my life. Did I want to be somebody or just somebody's wife? Did I want a man to love me? Did I really need it to survive? Was a man's love my only purpose, the reason I was alive? What if there was no respect, no kindness in his love, mistreatment and violence, or all of the above? What if he was the one that the feminists hate? What if I realized he never loved me when it was too late? Did men really know love? And then he arrived and wrote poems in my name. I would watch my favorite show and he would watch his game. His love wasn't a fairy tale, he would mostly make me mad. And only sometimes he would say sorry first when I was hurt or sad. His love did not look like the rom-coms I had seen. He was no Prince Charming, but I surely was his queen. I had to teach him empathy, but he learned too much too soon, and that was more romantic than a dinner date under the moon. I did not need any grand gestures, no gifts or rings to wear. I knew for a fact that he listened, he cared. All my doubts were gone, and love was the essence of life. His love proved that it wasn't that bad to want to be somebody's wife. So if you ask me now if men know love, I'll say they do it well. It won't always be evident, they don't show, count, or tell. Sometimes they won't be ideal, sometimes they'd make mistakes, but if an apology comes when it's due, isn't that all it really takes? Because not every man out there is bad, not every love is cruel. Not every man would want you to live by his approval. Not every love will bring with it a list of do's and don'ts. Not every love will have darkness and leave you all alone. Because men in love are hope and light, they sparkle, glow and shine. Men in love are brave, they've got guts, they've got a spine. Men in love are beautiful, men in love are kind. Men in love are treasures that aren't very hard to find. Men in love are underrated. They don't get credit for what they do. They also need to be cherished. They deserve respect too. The way men love is simple. It's sincere, honest and true. And you'll know this warmth I talk about when a good man loves you. Thank you. कोई तो हो जो सुने तो सुने बस मेरी निगाह को, क्योंकि जुबान पर अक्सर ताले और नजरों में बहुत सारी कहानियां रखती हूँ मैं। वो मुझसे बात करने आए और कहे कि मुझसे नजरें मिलाओ, फिर हो यूं कि वो कहे कि कुछ कहना चाहती हो, जो नहीं कहना चाहती वो तो मैंने सुन लिया। दिल तो हर जगह से टूटा हुआ है मेरा, दिल के हर कोने हर दीवार में छेद है, मगर कोई तो हो जो झांक कर अंदर आने में दिलचस्पी रखे, झांक कर भागने में नहीं। दिल तो ढेर हो चुका एक घर है जो मरम्मत नहीं मांगता, बस सोहबत मांगता है उस शख्स की जो कि इसकी टूटी हुई दीवारों के अंदर आकर इसे जोर जोर से ये बताए कि इसकी बची खुची दीवारें मैली हैं जो रंगी जा सकती हैं,
कुछ तस्वीरें टंगी हैं अब भी पुरानी जो फेंकी जा सकती हैं। हाँ, वैसे काफी नुकसान हुआ है दरो दीवार के टूटने से, मगर इसकी बुनियाद अब भी सलामत है। कोई तो हो कि जो देखे तो देखे बस मुझको, कहे मुझसे कि ये मुस्कुराहट ना खूबसूरत तो है मगर खास नहीं, खास है ये जख्म जो तूने कमाए हैं पहने नहीं। कहे मुझसे कि ये खुशी मेरी है मैं नहीं, कहे मुझसे कि जो मैं दिखती हूं ना वो मैं हूं नहीं। कहे मुझसे कि मैं अपनी नज़्मों को अपने जहन के आगे का पर्दा बनाकर रखती हूँ, पर्दा जिसके आर पार दिखता है। कहे मुझसे कि मेरी मुस्कुराहटें बस मेरी नाकाम कोशिशें हैं अपने जज्बात पर लगाम लगाने की। कहे मुझसे कि ये नकाब उतार कर रख दे तू और आईना देख, महज खुद को देखने के लिए, छुपाने के लिए नहीं। कहे मुझसे कि तू दर्द का चेहरा है, दरारों से भरा हुआ बिगड़ा हुआ दर्द जो हसीन है, इश्क है। कहे मुझसे कि तू दर्द है, हसीन है, इश्क है। इमेजिन करो अ प्लैनेट विदाउट अ वुमन। रूखी सूखी जिंदगी, मायूस सी खोखली डब्बी। जब बगीचे में फूल उगाने वाला कोई नहीं होगा, फूल उगा के उसे बालों में रखने वाला जब कोई नहीं रहेगा, भीड़ में जब सिर्फ वाइट शर्ट दिखने लगेंगे, ना कोई रंग ना कोई इतर जब पीछे छूटेगा, जब मर्दांगी से सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तब नाजुकता में कितनी शक्ति है ये तुम्हें पता लगेगा। सच बताऊं ना, सच बताऊं तो सच यही है कि औरत के बिना ये जहां एक बंजर जमी है, इसके अंदर जान डालती तो हमारी परीन है। अब मोहब्बत की बात कर लो, जितना शायरों ने हमें कॉम्प्लिकेट करके लिखा है उतने तो असल में हम है ही नहीं। हम तो इश्क के मोहताज है और हर औरत प्यार के लिए कुर्बानी दे ही देती है, फिर तो वो यार हो या खानदान, उसे अंत तक संभाल के रखती है। किताबें लिख दी, बड़ी बड़ी फिल्में बना दी, मगर आज तक कभी किसी को समझ नहीं आता कि असल में चाहिए क्या हमको। दुनिया का स्टिल नॉट डिस्कवर्ड आंसर बन गया है, औरत को क्या चाहिए ये तो साइंटिस्ट भी नहीं बता पाया है। इसलिए इसका जवाब ना आज मैं देने जा रही हूं, तो सुनिएगा अच्छे से। अब लड़की हूं तो लड़कों का तो नहीं बोल सकती हूं, मगर हमें ना ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। अगर इश्क में हो तुम तो हमारे लिए बस इतना बहुत होता है, और इश्क बेखूबी खुद दिख जाता है। गिफ्ट से ज्यादा ना अटेंशन चाहिए हमें, भीड़ में नजरें मिला के हंस देना, तुम रोड क्रॉस करने से पहले मेरा हाथ थाम लेना, वैसा ख्याल जैसा बाबा ने किया ना बस वैसा रख लेना, तुम इज्जत के साथ मुझे खुद का मान लेना। थोड़े इमोशनल है और थोड़े सेंसिटिव भी, इसलिए पहचान लेना हमें तुम उन सारे बड़े वादे करने से पहले ही। हम टूट जाते हैं जल्दी से, ये गर्ल्स हार्मोन्स ना होते बड़े नाजुक है। अब इसे तुम इरिटेटिंग मत मान लेना, तुम हमसे बस परेशान मत हो जाना, क्योंकि हर लड़की किसी के लिए एक जरूरत बनना चाहती है। हमसे परेशान होने वाली तो कमबख्त पूरी दुनिया बैठी है, हमसे परेशान होने वाली तो कमबख्त पूरी दुनिया बैठी है। तालियां बजा सकते हैं और ऐसा खुल के। तो मैं ना 23 इयर्स की हूँ और मैंने नए शहर में जाके कॉलेज करी, नए शहर में जाके जॉब करी। जॉब ठीक नहीं लगी तो जॉब बदली, जॉब ठीक लगी तो इश्क में पड़ी, इश्क में पड़ी कि दिल टूटा। फिर ये सब के बाद समझ आया भाई अडल्टिंग इतना फन नहीं है। हम ना सुकून की तलाश कर रहे हैं मगर सुकून ही पीछे कहीं ना कहीं छोड़कर। इसलिए मैं तो कहती हूँ अगर जिंदगी मौका दे, कि अगर जिंदगी मौका दे ना तो घर ही रह जाना चाहिए, मम्मी पापा के साथ ही ठहर जाना चाहिए, क्योंकि साल बेसाल बीत रहे, आसमान के साथ रद बदल रहे। खुशी है अगर आज जीने की तो डर भी है कल का। उम्र बढ़ रही है हमारी मगर बीत रही है माँ बाप की। तो इसलिए कोई भी मौका क्यों छोड़ना, कोई भी लम्हा क्यों चूकना। जो भी वक्त साथ मिले उसे बस जी लेना,
तबीयत उनकी खराब हो तो सख्त खड़े रहना, जब जश्न का मौका हो तो लाइटें दीवारों पे यूं चमका देना। वक्त वक्त की बात है साहब, घर जब तक घर है ना, उसका सुकून तुम रूह से महसूस कर लेना। घर जब तक घर है तो उसका घमंड करके सबके सामने इतराना। और मैं तो बोलूंगी, अगर जिंदगी मौका दे, अगर जिंदगी मौका दे तो